بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ وہ نشے میں تھے، یقیناً ان کا نشہ سر چڑھ کر بول رہا ہوگا اور وہ اپنے فرائض سے غافل ہو گئے ہوں گے۔ نشے کی حالت میں کنٹرول ٹاور والوں سے فرہاد کا ذکر کر رہے ہوں گے، جبکہ بیچارہ فرہاد تو خدائی خدمتگار ہے۔ اس نے اسٹوورڈ کے ذریعے اس طیارے کو تباہی سے بچا لیا۔ بے شک تم بدنامی سے بچ گئے، لیکن مجھے بے نقاب نہیں کر سکے اور نہ ہی کبھی کر سکو گے۔ اسی وقت ایک آفیسر نے آ کر کہا، مسٹر فرہاد، برطانوی پارلیمنٹ کے ممبران کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا تماشا ہے؟ فرہاد علی تیمور کیوں ہمیں احمق بنا رہا ہے؟ پہلے تو پائلٹ کے دماغ پر قبضہ جما رکھا، پھر خود کو بدنامی سے بچانے کے لیے اسٹوورڈ کو اعلی کار بنایا، پائلٹ اور کو پائلٹ کو مار ڈالا تاکہ وہ اس کے خلاف بیان نہ دے سکیں، اسٹوورڈ کو اپنے قابو میں رکھا تاکہ وہ دہشت میں مبتلا ہو کر اس کی حمایت میں بیان دیتا رہے۔ کیا ہم فرہاد کی اس بچگانہ چال کو سمجھ نہیں سکتے؟ سپر ماسٹر نے میرے دماغ میں کہا لگایا اور کہا، لو، میں سمجھ رہا تھا تم بدنامی سے بچ گئے اور میں بے نقاب نہیں ہوا۔ واہ، اسے کہتے ہیں کمال۔ میں تو نقاب میں ہی ہوں، کوئی مجھے الزام نہیں دے سکتا، سارا الزام تم پر آ رہا ہے۔ میں نے ناگواری سے کہا، مجھے الزام کی پرواہ نہیں ہے، آج نہیں تو کل میں اپنی طرف سے پوری طرح صفائی پیش کرنے کی کوشش کروں گا اور انہیں اپنے اعتماد میں لے لوں گا، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں نے مسافروں کی جان بچائی، طیارے کو تباہ نہیں ہونے دیا۔ فرہاد، ذرا حساب لگا کر بتاؤ تم نے مسافروں کی جان بچانے کے لیے کتنے گھنٹے ضائع کیے؟ میں نے کہا، تقریباً 2 گھنٹے۔ اس نے پھر کہا لگایا، اس کے بعد کہا، میں یہی چاہتا تھا، تم اگر ایک جگہ سے کامیاب ہو جاؤ تو دوسری جگہ ناکام رہو۔ میں تمہیں 2 گھنٹے تک غافل رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ 2 گھنٹے میں ہیلی کاپٹر پیرس سے پرواز کرتا ہوا یورپ کی کسی بھی سرحد کو پار کر سکتا ہے۔ میں نے چونک کر پوچھا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ مجھ سے نہ پوچھو، ذرا یہ دیکھو جوجو اور پارس اول کہاں ہیں؟ میں نے ایک دم سے تڑپ کر خیال خوانی کی۔ جوجو کے دماغ میں پہنچا تو وہ بے ہوش تھی، اس کے دماغ سے کچھ معلوم نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ میں نے اعلیٰ افسر سے پوچھا، جو آپ لوگوں کی حفاظت میں تھی وہ بے ہوش کیسے ہو گئی ہے؟ کیا اب تک آپ لوگوں کی نگرانی میں ہے یا دشمن کی چال کامیاب ہو گئی ہے؟ اعلیٰ افسر نے کہا، جناب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو صاحبہ ہماری نگرانی میں ہیں، میں ابھی معلوم کرتا ہوں۔ میں تم سے پہلے معلوم کر لوں گا، بہرحال تم ٹیلی فون کے ذریعے اپنی تسلی کر لو۔ میں ایک ماتحت افسر کے دماغ میں پہنچا، وہ جو کی نگرانی پر مامور تھا، اپنے کئی مسلح سپاہیوں کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ اس کے کچھ سپاہی مارے گئے تھے اور کچھ سپاہیوں کے ساتھ وہ ایک جگہ بندھا پڑا تھا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی، لیکن وہ ریسیور تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میں نے دماغی طور پر حاضر ہو کر کہا، تمہارا افسر اپنے سپاہیوں کے ساتھ بندھا پڑا ہے، وہ ریسیور نہیں اٹھا سکے گا۔ یہ کہہ کر میں نے پارس اول کے دماغ کی طرف چھلانگ لگائی، پھر ایک دم سے بے چین ہو گیا۔ وہ بھی غافل تھا، اس کے دماغ سے بھی بے ہوشی کا پتہ چلتا تھا۔ میں دماغی طور پر حاضر ہو کر سوچنے لگا، یہ اچانک کیا ہو رہا ہے اور ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سپر ماسٹر کہا لگاتا ہوا میرے دماغ میں آیا۔ میں نے اسے آنے دیا۔ اس نے کہا، اب بھی اعتراف کر لو، ہماری آخری ٹرانسفارمر مشین تمہارے بیٹے نے تباہ کی ہے اور تم اس کے ذریعے خیال خوانی کر رہے تھے، اس کی مدد کر رہے تھے۔ میں نے کوئی خیال خوانی نہیں کی، میں نے کسی کی مدد نہیں کی، میں غلط بات کبھی تسلیم نہیں کروں گا۔ کیا تمہیں پتا ہے اس ٹرانسفارمر مشین کے ساتھ میرا ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا ماتحت مارا گیا ہے؟ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتا، اگر جانتا تو مسرت کا اظہار کرتا، کیونکہ ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا شیطان کم ہو چکا ہے۔ دیکھو سپر ماسٹر، تم خواہ مجھ سے دشمنی مول لینا چاہتے ہو، تم اپنے باپ کا انتقام لینے کے لیے مجھ سے ٹکراؤ، مگر میرے بچوں کے پیچھے نہ پڑو، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ یہی تو دیکھنا چاہتا ہوں، انجام کتنا برا ہوگا۔ تم نے اب تک دوسروں کو انجام تک پہنچایا ہے، کوئی ایسا بھی تو ہو کہ تمہیں انجام تک پہنچائے، اور وہ میں ہوں۔ میں نے اب تک تمہارے چیلنج کو بچگانہ سمجھا، ایک دیوانے کی سوچ، ایک ایسے طالب علم کی خوش فہمی جس نے نیا ٹیلی پیتھی کا علم سیکھا ہو، لیکن تم حد سے بڑھ رہے ہو، لہٰذا آج سے یہ ٹھن گئی، میں تمہارے مقابلے پر آ رہا ہوں، اور اس لمحے کے بعد تم کبھی میرے دماغ میں نہیں آ سکو گے۔ ناؤ گیٹ آؤٹ۔ میں نے سانس روک لی، اسے ایک کچرے کی طرح دماغ سے نکال دیا۔ اب اس کی ایک ایک چال کو زیادہ توجہ کے ساتھ سمجھنا ضروری تھا۔ اس نے جو اور پارس کو کس طرح اغوا کیا یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا، لیکن میں قارئین کو ابھی بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ داستان کا تسلسل قائم رہے۔
हमने पारस अव्वल को फिर मिलिट्री अस्पताल पहुंचा दिया था ताकि तमाम डॉक्टर तवज्जो से उसका इलाज करें और किसी तरह उसके अंदर के सारे जहर को ख़त्म कर दें। सुपर मास्टर फ्रांस के हर शोबे में दूर दूर तक पहुंच चुका था। वो जानता था मेरे बेटे का इलाज हो रहा है। उसने अपने 2 टेलीपैथी जानने वाले मातहतों से कहा, उनमें से एक जोजो के पास रहेगा और दूसरा उस हेलीकॉप्टर के पायलट के दिमाग में रहेगा जो इन दोनों को यहाँ से ले जाएगा। खुद सुपर मास्टर ने उस फौजी अफसर के दिमाग पर कब्जा जमाया जो पारस की निगरानी पर मामूर था। उस अफसर ने डॉक्टरों से कहा, अभी अभी फरहाद साहब का फ़ोन आया है कि पारस अव्वल के लिए बहुत ज़्यादा खतरात पैदा हो गए हैं, लिहाजा उन्हें एक खुफिया पनाहगाह में ले जा रहे हैं। आप लोग वहीं आकर उसका इलाज करेंगे। जब इतना बड़ा फौजी अफसर कह रहा था तो भला कौन शुबा कर सकता था। एक एम्बुलेंस मंगवाई गई। पारस उस ऑफिसर के साथ चलता हुआ एम्बुलेंस के पिछले हिस्से में आया। ऑफिसर ने कहा, यहाँ लेट जाओ। पारस ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन सा बीमार हूँ, मेरा तो सिर्फ जहर का इलाज हो रहा है। उसी वक्त एक फौजी जवान ने किसी आहनी चीज से उसके सर पर एक जोरदार ज़रब लगाई। पारस का सर चकराया, लेकिन वो भी बला का फौलाद था। एक ज़रब से कुछ बिगड़ नहीं सकता था। उसने एक उल्टा हाथ उस जवान को लगाया। वो लुढ़खड़ाता हुआ एम्बुलेंस की दीवार से जाकर टकरा गया। ऑफिसर ने उस पर छलांग लगाई। पारस ने एक हाथ से उसकी कमर दबोची, दूसरे हाथ से उसकी गर्दन पकड़ ली। अगर वो पहली ही फुर्सत में टांगों पर रखकर उसे उछाल देता और ऑफिसर अलग हो जाता तो पारस का भला होता। यही उससे चूक हो गई। ऑफिसर को जितनी देर तक उसे लिपट कर रहने का मौका मिला, इतनी देर में उसने इंजेक्शन की सुई उसके बाजू में पेवस्त कर दी थी। फिर उसे होश ही नहीं रहा कि कौन उसे लिपटा हुआ है और उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। हत्ता कि मैं भी उसके दिमाग में पहुंचा तो उसने मुझे महसूस नहीं किया। वो अपनी ज़ात से बिल्कुल गाफिल हो चुका था। जोजो को अगवा करना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था। सुपर मास्टर ने अपनी टेलीपैथी जानने वाले मातहत को उसकी निगरानी पर मामूर कर दिया था। उसे अच्छी तरह समझा दिया था कि जब भी वो जोजो से कहेगा कि वो उसका प्यारा प्यारा अंकल है तो वो उसकी हर बात पर अमल करेगी। लिहाजा जब उसने एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनी तो उसने जोजो से उसके अंकल की आवाज़ में कहा, हेलो जोजो, मैं तुम्हारा प्यारा प्यारा अंकल बोल रहा हूँ, क्या मुझसे मिलना चाहती हो? हाय अंकल, आप कहाँ हैं? मैं आपको बहुत याद कर रही थी। मेरे साथ जाने क्या क्या चक्कर चल रहा है। मेरा पारस अस्पताल में है। एक नागिन उसके अंदर जहर भरती जा रही है। क्या आप उसका जहर निकाल सकते हैं? मेरी प्यारी बेटी, मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ कि वो नागिन कहीं तुम्हारे अंदर जहर ना भर दे। अगर तुम उस जहर से बचना चाहती हो तो तुम्हारे बिस्तर के सराहने वाली मेज़ की दराज में एक इंजेक्शन रखा हुआ है। तुम उसकी सुई अपने बाजू में पेवस्त कर लो और उसकी तमाम दवा अपने अंदर इंजेक्ट कर लो। उसके बाद किसी भी नागिन का जहर तुम पर असर नहीं करेगा। वो खुश होकर बिस्तर पर बैठ गई। फिर बोली, सच अंकल, क्या मैं इस नागिन से महफूज रहूंगी? मैं तुम्हारी हिफाजत करता रहूंगा। तुम वो इंजेक्शन अपने बाजू में लगाओ। उसने मेज़ की दराज को खोला। वहाँ एक सिरिंज भरी हुई रखी थी। उसने अपने प्यारे प्यारे अंकल की हिदायत के मुताबिक उसकी सुई को अपने बाजू में पेवस्त किया। फिर उसकी सारी दवा अपने अंदर इंजेक्ट कर ली। उसके बाद उसे कोई होश ना रहा। ना वो दोनों होश में थे, ना मैं फरहाद अली तैमूर किसी तरह उनका सुराग लगा सकता था। वैसे एक हकीकत को मैं बचपन से आजमाता आ रहा हूँ, वो ये कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मुझ पर बचपन ही से क़यामतें टूटती रही थी। बचपन में मेरी चची और उनकी औलाद ने मुझे मार डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरी ज़िंदगी थी, इसीलिए आज तक जी रहा हूँ। कितने ही सरफिरे दुश्मन मेरे मुकाबले पर आए, कितने ही नाकाबिले शिकस्त दुश्मन शिकस्त खाकर हमेशा के लिए फना हो गए। मेरी तरह आज मेरे बच्चे भी मसाइब का शिकार हो रहे थे और उनके साथ भी वही कहावत सादिक आ रही थी कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। यूं तो सुपर मास्टर के 2 टेलीपैथी जानने वाले मातहत पारस और जोजो को अगवा करके ले जा रहे थे, लेकिन अगवा करने वाले दूसरे आलाकारों में तमाम के तमाम यहूदी थे और वो इन दोनों को इसराइल ले जाना चाहते थे। इस्तांबुल के करीब पहुंचते ही हेलीकॉप्टर में अचानक कोई टेक्निकल खराबी पैदा हो गई। जब तक वो इसे ज़मीन पर ना उतारता उसकी खराबी मालूम नहीं हो सकती थी। उसने हद्दुल इम्कान कोशिश की कि हेलीकॉप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक प्रवास करते हुए ले जाए। आखिर वो उसे प्रिंस आइलैंड तक ले ही गया। ये सब कुछ ऐसे वक्त हो रहा था जब मैं तैयारे के मुसाफिरों को बचाने में मसरूफ़ था, और जब मुझे उनके अगवा का इल्म हुआ तो मैं ये मालूम नहीं कर सकता था कि जोजो और पारस अव्वल प्रिंस आइलैंड पहुंचाए गए हैं। वो दोनों बेहोश थे और मेरी कोई रहनुमाई नहीं कर सकते थे। सुपर मास्टर ने हुक्म दिया,
जो तमाशा इन दोनों के साथ करना है वो इसी जजीरे में किया जाए। ज़्यादा खतरा मोल लेना मुनासिब नहीं है। हो सकता है पारस होश में आने के बाद मुसीबत बन जाए या फरहाद इनके ज़रिए तुम लोगों तक पहुंच जाए, फिर तुम उन्हें इसराइल तक नहीं ले जा सकोगे। एक बार मैं पारस के दिमाग में पहुंचा तो वो होश में आ चुका था। वो और जो 2 कुर्सियों पर बंधे हुए थे और दोनों एक दूसरे से दूर बिठाए गए थे। उन दोनों के सामने एक बड़ी सी स्क्रीन थी। मैंने जैसे ही उसे मुखातिब किया उसने कहा, पापा आप यहाँ से फ़ौरन चले जाएं। क्या बात है बेटे? ये लोग सही मानों में शैतान हैं पापा। ये सामने वाले स्क्रीन पर अभी एक इखलाक सोज फिल्म दिखा रहे थे और उसके बाद फिर दूसरी फिल्म चलाने वाले हैं। प्लीज़ आप यहाँ से चले जाएं। इतना बता दो कि तुम कहाँ हो। मुझे कुछ पता नहीं है, मैं यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानता। प्लीज़ आप मेरे दिमाग में ना रहें, मैं अपने हालात से निमट लूँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे बाद आकर मेरी खैरियत मालूम कर लें। मैं उसके दिमाग से चला आया। मुझे सुपर मास्टर पर गुस्सा आ रहा था। वो कमबख्त ऐसी चालें चल रहा था कि मैं अपनी औलाद के दिमागों में पहुंचकर भी उनकी मदद नहीं कर सकता था। वहाँ वो बेशर्मी की इंतहा कर रहा था। मैं नहीं जानता कि अब पारस और जोजो के साथ क्या हो रहा है, लेकिन बाद में दूसरे ज़राए से जो कुछ मालूम हुआ उसे मैं बयान कर रहा हूँ। वो 2 अलग कुर्सियों पर बंधे हुए थे। वो एक बड़ा सा हॉल था। उनके सामने एक स्क्रीन पर फिल्म चल रही थी। जोजो ने आंखें बंद कर ली थीं और कह रही थी, प्यारे प्यारे अंकल तुम भी गंदे बच्चे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। पारस ने भी आंखें बंद कर रखी थीं और कह रहा था, जोजो जब तक तुम नादान बच्ची बनकर रहोगी हम नई नई मुसीबतों में मुब्तला होते रहेंगे। तुम फौरन हर एक पर एतमाद कर लेती हो। दुश्मन को अब भी प्यारा प्यारा अंकल कह रही हो। वो जहाँ थे उस बड़े से हॉल में एक बहुत बड़ा पलंग बिछा हुआ था। एक शख्स ने आकर कहा, तुम दोनों को आंखें खुली रखनी चाहिए वरना। एक तमाचा मारने की आवाज़ आई। जोजो के हलक से चीख निकली। उसकी आंखें खुल गईं। पारस ने आंखें खोल कर देखा तो वो रो रही थी। तुम बहुत ख़राब बच्चे हो, लड़की को थप्पड़ मारते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? पारस बंधा हुआ था और जोर लगाकर रस्सी तोड़ने की कोशिश करते हुए कह रहा था, मर्द के बच्चे हो तो रस्सी खोलो। तुमने जोजो को एक तमाचा मारा है, मैं तुम्हारे हाथ काट कर फेंक दूंगा। वो हंसते हुए बोला, अपने माँ बाप को बुलाओ ताकि वो मेरे दिमाग में पहुंचने की नाकाम कोशिश करें। उन्हें यह कभी मालूम नहीं हो सकेगा कि तुम दोनों को कहाँ से लाया गया है। बहरहाल वो सामने बहुत ही खूबसूरत और आरामदेह पलंग देख रहे हो, ये तुम मियाँ बीवी के लिए है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। सुना है जब से तुम्हारी शादी हुई है तुमने इज़्दवाजी वजीफ़ा अदा नहीं किया है, और तुम कर भी कैसे सकते हो? तुम तो जहरीले हो। जिसके पास जाओगे वो बेचारा सलारा की तरह जहरीली मोहब्बत से मर जाएगा। फिर उसने हाथ उठाकर किसी को हुक्म दिया, इंजेक्शन ले आओ। एक मुलाजिम एक ट्रे पर सिरिंज और इंजेक्शन की छोटी सी शीशी लेकर आ गया। वो शख्स कहने लगा, दरअसल जो जज्बात को नहीं समझती है, ये ज़हनी तौर पर अभी तक बच्ची है, लेकिन ये इंजेक्शन इस बच्ची को अचानक जवान बना देगा। उसने सिरिंज में कोई दवा भरी, फिर जोजो के पास आकर उसके एक बाजू की आस्तीन को पकड़कर एक झटके से फाड़ दिया। सिरिंज की सुई उसके बाजू में चबोई, फिर दवा उसके अंदर इंजेक्ट कर दी। जोजो के चेहरे पर तकलीफ के आसार थे। वो बुड़बुड़ा रही थी, उन्हें बुरा भला कह रही थी। थोड़ी देर बाद वो चुप हो गई। उसकी आंखें बंद हो गईं। पारस उसे गौर से देख रहा था। वो ज़रा आगे पीछे झूम रही थी। उस शख्स ने उसकी रस्सियां खोल दी। वो कुर्सी पर बैठे बैठे आंखें खोलकर इधर उधर देखते हुए बोली, कितना अच्छा लग रहा है। ये सामने की दीवार इधर से उधर घूम रही है। आहा, मेरे अंदर क्या हो रहा है? जी चाहता है मैं हवा में उड़ने लगूं। वो कुर्सी से उछलकर खड़ी हो गई, जैसे उछलकर हवा में उड़ना चाहती हो, लेकिन डगमगा गई, गिरते गिरते संभल गई। फिर शराबियों की तरह इधर से उधर जाते हुए हंसने लगी। हंसते हंसते उसने अपने लिबास का एक हिस्सा फाड़ दिया। पारस ने चीख कर कहा, जोजो ये क्या कर रही हो? होश में आओ, देखो तुम्हारा बदन नजर आ रहा है। इस हॉल का एक दरवाज़ा खुलने लगा। उस दरवाजे में 4 पहलवान किस्म के हट्टे कट्टे मर्द नजर आए। वो सिर्फ लंगोट पहने हुए थे। उनके कसरती जिस्म चट्टान की तरह सख्त दिखाई दे रहे थे। उस शख्स ने कहा, ये 4 पहलवान बहुत ही बदमाश हैं। किसी बहन या बेटी की इज्जत का ख्याल नहीं करते। ये भी नहीं सोचेंगे कि जो तुम्हारी शरीके हयात है। उसने एक पहलवान से कहा, पारस की रस्सियां खोल दो। पारस आज़ाद हो गया, लेकिन उन पहलवानों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। वो शख्स कह रहा था, ये गूंगे और बहरे हैं, तुम्हारा बाप इनके दिमागों तक नहीं पहुंच सकेगा, मगर अगर तुम में दमखम है
तो इन चारों की हड्डियां पसलियां तोड़ दो। अगर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते तो एक शरीफ आदमी की तरह अपनी बीवी के पास जाओ और शौहर होने का हक अदा करो। उधर जो दीवानावार कह लगा रही थी और अपना लिबास नोच नोच कर फेंक रही थी। उस शख्स ने कमरे से जाते हुए कहा, मैं जा रहा हूँ, दरवाज़ा खुला रहेगा और ये चारों पहलवान इस बात के चश्मदीद गवाह रहेंगे कि तुमने हमारे हुक्म की तकमील की है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर ये चारों पहलवान मैदान में आएंगे। फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम अपनी बीवी की इज्जत इन चारों से बचाना चाहते हो तो जाओ, अपनी बीवी को संभालो, वो दीवानी हो रही है। वो उस हॉल से बाहर चला गया। पारस ने गुस्से से चीख कर कहा, अबे ओ जलील शैतान के बच्चे, मैं जहरीला ज़रूर हूँ लेकिन जो को अपने जहर से कभी नहीं मारूंगा। उसकी बात सुनते ही एक पहलवान ने लपक कर जो को पकड़ लिया, फिर उसे दोनों बाजुओं में उठाकर पलंग के ऊपर फेंक दिया। पारस एकदम से तड़प कर आगे बढ़ा तो उसके मुंह पर एक पहलवान का घूंसा पड़ा। अभी वो ना तो मार खाने में अपनी तौहीन समझ रहा था और ना ही किसी पर जवाबी हमला करना चाहता था। उसे जो की फिक्र थी। वो पहलवानों से कतरा कर उसे बचाने के लिए जाना चाहता था, लेकिन पीछे से एक लात पड़ी। वो अपना तवाज़न कायम ना रख सका, सामने फर्श पर जाकर ऊंधे मुंह गिर पड़ा। इससे पहले कि वो उठता, चारों पहलवानों ने उसके दोनों हाथ और दोनों पांव पकड़ लिए, फिर उसे झुलाते हुए जो के पास पलंग पर फेंक दिया। कानों में उसी शख्स की आवाज़ गूंज रही थी। वो कह रहा था, निजात का कोई रास्ता नहीं है। ये ना समझना कि ये सिर्फ 4 पहलवान हैं। अव्वल तो ये तुम्हारी हड्डियां पसलियां तोड़ देंगे। अगर किसी तरह बचकर निकलने में कामयाब भी हो गए तो इस हॉल के बाहर तुम्हें गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। जो दीवानावार कह लगाते हुए उस पर छा गई थी। वो हैरान परेशान अपनी बचपन की साथी को, अपनी शरीके हयात को, अपनी जान को ऐसे रूप में देख रहा था जिसकी वो कभी तवक्को नहीं कर सकता था। वाकई निजात का रास्ता नहीं था। अगर वो जो को अपने जहर से महफूज रखना चाहता तो वो चारों पहलवान उसकी इज्जत के दुश्मन बन जाते। उस शैतान के बच्चे सुपर मास्टर ने इंतहाई जहरीली चाल चली थी। वाकई निजात का कोई रास्ता नहीं था। यूं तो दुश्मनी हर कोई कर लेता है, मगर सलीके से कोई करता है, क्योंकि दोस्ती करने के लिए ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्ती के लिए सिर्फ जज्बा काफी होता है, लेकिन दुश्मनी के लिए होशो हवास में रहना जरूरी होता है, क्योंकि ये गुस्से का नतीजा होती है और गुस्से के वक्त आदमी कभी होश में नहीं रहता। सुपर मास्टर तकरीबन 20 बरस से गुस्से में था। अपने बाप की मौत का इंतकाम मुझसे लेना चाहता था। इंतकामी कार्रवाई के लिए आदमी चाहे कितना ही ठोस और जामे मंसूबा बना ले, उस मंसूबे की बुनियाद में गुस्सा और थोड़ी बहुत हमाकत मौजूद रहती है। वो पारस और जो को एक 4 दीवारी में कैद करके उन्हें इज़्दवाजी वजीफा अदा करने पर मजबूर कर रहा था। देखा जाए तो वो बड़ी दानिशमंदाना चाल चल रहा था। एक दुल्हन को उसके दुल्हा की मोहब्बत से कत्ल कराना चाहता था। अगर उसका मंसूबा यहीं तक होता तो शायद वो कामयाब हो जाता, लेकिन उसने 4 पहलवानों को मुकाबले पर भेजकर पारस को इस नतीजे पर पहुंचा दिया था कि उसे ऐसे भी मरना है, वैसे भी मरना है। तो फिर अपनी जो की जान का दुश्मन क्यों बने? जब मरना ही ठहरा तो फिर दुश्मनों से 2-2 हाथ करके जान देगा या जान लेगा। सुपर मास्टर के मंसूबे का कामयाब पहलू यह होता कि वो पारस को इस बात की जमानत देता कि इज़्दवाजी रिश्ते के बाद बला से जो मर जाए, मगर पारस को रिहा कर दिया जाएगा। हालांकि पारस कभी जो की हलाकत गवारा ना करता, लेकिन ये बात सुपर मास्टर के नुक्ता नज़र से कह रहा हूँ। वो ये ख्याल कायम कर सकता था कि पारस अपनी जान बचाने के लिए खुद गर्ज बन सकता है, जो को मारकर अपनी निजात का रास्ता बना सकता है, लेकिन उसकी प्लानिंग में खराबी रह गई थी। उसने पारस के फरार का रास्ता बंद कर दिया था। वो भूल गए थे कि उसकी रगों में सांप का जहर दौड़ रहा है, और सांप का रास्ता हर तरफ से रोका जाए, उसे निकलने का मौका ना दिया जाए तो वो फुंकारता है और डसना शुरू कर देता है। दवा के असर से जो पर दीवानगी तारी थी। वो अपने बालों को नोच रही थी, लिबास को तार तार कर रही थी। पारस नहीं चाहता था कि कोई उसे ऐसी हालत में देखे, लेकिन वो काबू में नहीं आ रही थी। उसने मजबूर होकर उसके सर को दोनों हाथों से थाम लिया और दोनों कनपट्टियों की मखसूस रगों पर अपने अंगूठों का दबाव डालना शुरू किया। अचानक जो के कहकहे घुट गए, उसके हलक से कराह निकली, दीदे फैल गए, फिर आंखें बंद होने लगीं, जिस्म ढीला पड़ गया। पारस ने उसे आहिस्तगी से लिटा दिया। वो बेहोश हो गई थी। उसने बिस्तर की चादर खींचकर उस पर डाल दी।
वो अपनी शरीक हयात को अच्छी तरह चादर में छुपाने के बाद पहलवानों की तरफ घूम गया। उन चारों को बारी बारी देखकर बोला, ये लड़की इतनी मासूम है जितनी कोई नौजायदा बच्ची हो सकती है। तुमने इस बच्ची को ऐसे मकाम तक पहुंचाया जहां इसका लिबास तार तार हो गया। अगर तुम लोगों ने शादियां की हैं तो तुम्हारे घरों में बेटियां जरूर होंगी, और अगर शादियां नहीं की तो बहनें यकीनन होंगी। एक लम्हे के लिए, सिर्फ एक लम्हे के लिए बाप या भाई की आंख से देखो, तुम्हें अपनी बहन या बेटी यहाँ बिस्तर पर चादर में लिपटी पड़ी नजर आएगी। फिर तुम्हें यह भी नजर आएगा कि हवसनाक दरिंदे उसे नोचने खसोटने आ रहे हैं। खुदा के लिए एक एक लम्हे के लिए इसे सिर्फ बाप या भाई की आंख से देखो। वो चारों कहे लगाने लगे। उनमें से एक ने कहा, उल्लू का पट्ठा हमारी बहनों और बेटियों का हवाला दे रहा है। अरे वो हमारे मजबूत बाजों की पनाह में रहती हैं, उन्हें यहाँ लाना तो दूर की बात है, कोई उनकी तरफ आंख उठाकर देखने की भी जुर्रत नहीं कर सकता। पारस ने कहा, अपने अपने घर का पता बताओ, मैं चंद घंटों में तुम्हारी घरवालियों को इस चार दीवारी में ले आऊंगा। पारस के ये अल्फाज उन शाहजोरों के लिए गाली से कम नहीं थे। उनमें से एक ने मुश्तिल होकर तेजी से पैंतरा बदला, फुर्ती से करीब आकर एक जबरदस्त दाव आजमाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हसरत दिल में ही रह गई। वो सोच भी नहीं सकता था कि सामने वाला खड़े ही खड़े फजा में उछलेगा और हमला करने वाले के सर पर हाथ रखकर ऊपर ही कलाबाजी खाता हुआ दूसरी तरफ चला जाएगा और सामने मैदान खाली रह जाएगा। उसने पलट कर देखा। जिसे जवान बच्चा समझा जा रहा था उसने पीछे पहुंचते ही दूसरे पहलवान को किक मारी थी। वो लात खाकर लुढ़खड़ाया। तीसरे पहलवान ने उसे संभाल लिया। पहले पहलवान ने जैसे ही पलट कर देखा, मुंह पर जबरदस्त कराटे का हाथ पड़ा। उस हाथ ने समझा दिया कि वो हाथ नहीं है, आहनी सलाख पर इंसानी खाल चढ़ी हुई है। लात खाने वाला गुस्से से आगे बढ़ा। पहलवानों में यह खराबी होती है कि वो भारी भरकम होते हैं, तेजी से हरकत नहीं कर सकते। उनके मुकाबले में पारस चीते की तरह फुर्तीला था। उसने समझ लिया था वहां पूमी आंटी का फाइटिंग स्टाइल काम आएगा, इसीलिए वो एक जगह नहीं ठहरता था, बिजली की तरह लपकता था। एक तरफ से छलांग लगाता था, दूसरी तरफ पहुंचने से पहले ही फजा में समरसॉल्ट के जरिए समत बदल देता था। पहलवानों को अंदाजा नहीं होता था कि बिजली किस पर गिरेगी। जब वो हथौड़े की तरह आकर बरसता था और बरस कर गुजर जाता था तो वो चोटों को सहलाते हुए गरजते थे, अबे ओ बंदर की औलाद, मर्दों की तरह एक जगह खड़ा रहकर मुकाबला क्यों नहीं करता? पारस ने पूछा। क्या एक तन्हा शख्स से लड़ने वाले चार पहलवानों को मर्द कहा जाता है? पारस ने इतनी देर तक लड़ने के दौरान चौथे पहलवान को बार बार देखा था। वो इब्तदा ही से दूर जाकर खड़ा हो गया था, इस मुकाबले में हिस्सा नहीं ले रहा था। तीन पहलवानों में से कोई मार खाकर उसकी तरफ पहुंचता था तो वो उनसे दूर होकर दूसरी जगह हाथ बांधकर तमाशा देखने लगता था। ना अपने साथियों की मदद कर रहा था और ना ही पारस से जुबानी हमदर्दी कर रहा था। शायद वो उसके लड़ने के अंदाज को देख रहा था, समझ रहा था, अच्छी तरह परख रहा था और आखिर में उसके लिए धमाका साबित होने वाला था। एक पहलवान ने बड़े जख्म खाने के बाद झुंझलाकर पूछा, क्या तुम यहाँ तमाशाई बनकर आए हो? दूसरा पहलवान मार खाकर लुढ़खड़ाता हुआ तमाशाई पहलवान के करीब आ गिरा, फिर जल्दी से उठकर गुर्राते हुए बोला, क्या $10,000 में सिर्फ हम तीनों मार खाएंगे? क्या तुम इस इंतजार में हो कि हम इस छोकरे के हाथों से मर जाएं और तुम तनहा मुआवजे की सारी रकम ले जाओ? तमाशाई पहलवान ने पूछा, क्या इतनी देर लड़ने के बाद तुम लोगों को यकीन हो गया है कि ये जवान तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा और मुझे मुआवजे की रकम ले जाने के लिए जिंदा छोड़ देगा? हम और क्या समझें, आसार तो यही नजर आ रहे हैं। बेशक यही होने वाला है, ये गालिब आएगा, इसलिए मैं गैर जानिबदार हूं। तुमने मुकाबला होने से पहले ये कैसे समझ लिया था? उसने पलंग पर पड़ी हुई जोजो को देखा, फिर कहा, मुझे इस जवान की शाहजोरी ने नहीं, इसकी बातों ने मारा है। आज से 10 बरस पहले कुछ गुंडे मेरी बहन को उठा कर ले गए थे। मैं मौजूद था मगर उनका मुकाबला ना कर सका। उन दिनों मैं बहुत कमज़ोर था, अपनी बहन को ना बचा सका। वो बेचारी किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रही, उसने खुदकशी कर ली। उस रोज़ मेरी समझ में आ गया कि कमज़ोरी इंसान को जीते जी मुर्दा बना देती है और मैं एक मुर्दे की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारूंगा। ताकत हासिल करूंगा, ताकत। उसने पारस को देखा, फिर कहा, मैंने पहलवानी शुरू की, अपना जिस्म बनाने लगा, अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ताकत और हौसला पैदा करने लगा। कितने ही पहलवानों से मार खाता रहा और उनसे तरह तरह के दाव पेच सीखता रहा। मैंने 4 बरस में इतनी कुव्वत हासिल कर ली कि अपनी बहन के कातिलों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगा।
वो मुझसे माफ़ियाँ मांगते थे, मेरे कदमों में सर रखते थे और मैं उनका सर कुचलता जाता था। आखिर मैंने उन्हें तड़पा तड़पा कर हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। पारस ने पूछा, जब तुम एक बहन का जख्म खा चुके थे तो दूसरी लड़की की मजबूरी और बेबसी से फ़ायदा उठाने क्यों आए? मैंने इन 10 बरसों में इतनी ज़्यादा कुव्वत हासिल कर ली कि मजबूरी, बेबसी और कमज़ोरी को भूलता चला गया। मैं ये सोचकर मुतमईन हो गया कि अपनी बहन का इंतकाम ले चुका हूँ, मेरा फ़र्ज़ अदा हो चुका है। मैंने सारी दुनिया की कमज़ोर औरतों की हिफाजत का ठेका नहीं लिया है। वैसे भी बदमाशी कमज़ोरों पर की जाती है, अगर मैं उनसे हमदर्दी करूँगा तो बदमाशी किससे करूँगा? उसने कुछ तवक्कुफ़ किया, फिर एक गहरी सांस ली और कहा, ताकत बुरी बला है, ये इंसान को बेहिस, जालिम और बेगैरत बना देती है। मैं भी मगरूर और बेगैरत बन गया, कमज़ोर औरतों से खेलने लगा, उनके रिश्तेदारों को उसी तरह ठोकरें मारने लगा जिस तरह मेरी बहन को उठाने वालों ने मुझे ठोकरें मारी थीं। आदमी या तो अपना बुरा वक्त भूल जाता है या फिर बुरा बनकर बुरे वक्त का इंतकाम दूसरों से लेता है। लेकिन नौजवान, आज तुम्हारी बातों ने मुझे झंझोर डाला है। मैं जब भी तुम्हारी शरीक हयात को देखता हूँ तो मुझे अपनी बहन नज़र आने लगती है। तुम्हारी दलेरी और जवामर्दी ने मुझे मुतासिर किया है। मुझे बताओ, तुम कौन हो? कोई तुम्हारे हाथों तुम्हारी शरीक हयात को कत्ल क्यों करवाना चाहता है? पारस ने कहा, मेरी रूदाद बहुत तवील है। क्या इतना कह देना काफ़ी होगा कि मैं फरहाद अली तैमूर का बेटा हूँ? उन चारों को जैसे बिजली का झटका पहुंचा, वो पीछे हट गए। एक ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? पारस ने पूछा, क्या तुम अपने बाप का नाम गलत बताकर अपनी माँ की तौहीन कर सकते हो? वो झींप गया। दूसरे ने पूछा, तुमने पहले क्यों ना बताया? जिन कुत्तों ने हमें तुम्हारे पीछे लगाया है उन्होंने भी हमें तुम्हारी असलियत नहीं बताई। तीसरे ने परेशान होकर कहा, अरे बाप रे, हम अनजाने में अपने ऊपर टेलीपैथी का अजाब नाजिल कर रहे थे। तमाशाई पहलवान ने कहा, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, हम इसकी तलाफी कर सकते हैं। गजब खुदा का, वो कुत्ते हमारा अड्डा भी इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें फरहाद साहब का दुश्मन भी बना रहे हैं, और हम $10,000 के लालच में अपनी अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। लानत है हमारी अकल पर। पारस ने पूछा, इस अड्डे में मेरे दुश्मन के कितने मुसल्लह अफराद हैं? वो लोग हेलीकॉप्टर में आए थे, कहीं दूसरी जगह जाने वाले थे। हेलीकॉप्टर में खराबी पैदा होने के बायस इस जजीरे में उतर गए। उनमें से एक पायलट है, दूसरा वो शख्स है जिसे तुमने थोड़ी देर पहले इस चार दीवारी में देखा था। बाकी 4 मुसल्लह अफराद इस बंद दरवाजे के बाहर हैं। उनकी तो हम ऐसी की तैसी कर देंगे। ये हमारा अड्डा है, यहाँ हमारे आदमी ज़्यादा हैं। वो बोलते बोलते चुप हो गया। खला में यूं तकने लगा जैसे किसी सोच में गुम हो गया हो या सोच की लहरों को सुन रहा हो। पारस ने पूछा, क्या बात है? उसने कहा, कोई मेरे दिमाग में कह रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम फरहाद साहब के बेटे नहीं हो। पारस ने कहा, वो यकीनन टेलीपैथी जानने वाला हमारा दुश्मन सुपर मास्टर है। सुपर मास्टर ने उस जख्मी पहलवान के दिमाग में कहा, मैं फरहाद अली तैमूर हूँ। ये सारी दुनिया जानती है कि सिर्फ मैं और मेरे साथी टेलीपैथी जानते हैं। हमारा कोई दुश्मन ये इल्म नहीं जानता। ये नौजवान सिर्फ दलेर ही नहीं, मक्कार भी है। जख्मी पहलवान ने पारस से कहा, तुम मक्कार हो, फरहाद साहब का कोई दुश्मन टेलीपैथी नहीं जानता। पारस सोच में पड़ गया। सुपर मास्टर टेलीपैथी का सहारा लेकर इन पहलवानों को फिर उसका दुश्मन बना रहा था। वो एक एक करके फिर तेवर बदल रहे थे। सिर्फ तमाशाई पहलवान खामोश था। चूंकि वो जख्मी नहीं था, इसीलिए सुपर मास्टर उसके दिमाग में पहुंचकर उसे वरगला नहीं सकता था। पारस ने पूछा, तुम सब मुझे इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? क्या वो टेलीपैथी जानने वाला शैतान तुम लोगों को बहकाने में कामयाब हो गया है? उनमें से एक ने कहा, शर्म करो। थोड़ी देर पहले जिस टेलीपैथी जानने वाले को बाप कह रहे थे, इसी जुबान से उसे शैतान कह रहे हो? वो तमाशाई कभी पारस को और कभी अपने साथियों को देख रहा था। फिर उसने एक साथी से पूछा, ये क्या हो रहा है? क्या वाकई तुम तीनों के दिमागों में कोई बोल रहा है? हाँ, फरहाद साहब बोल रहे हैं। पारस ने कहा, यह झूठ है। उनके दिमागों में बोलने वाला वही दुश्मन है जिसके एक मातहत ने तुम लोगों को मेरे खिलाफ किराए पर हासिल किया है। वो मेरे दिमाग में क्यों नहीं आ रहा है? वो जानता है कि तुम जख्मी नहीं हो। सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लोगे। फिर उसने इन जख्मियों के दिमागों में रहकर मालूम कर लिया है कि तुम मेरे हमायती हो। वो टेलीपैथी के जरिए इन तीनों को जबरन अपना आलाकार बना सकता है, तुम्हें नहीं बना सकेगा।
اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، کیا وہ خود کو فرحاد کہتا ہے؟ بے شک خیال خوانی کرنے والا فرحاد ہی ہو سکتا ہے۔ فرحاد صاحب کے متعلق ہماری معلومات محدود ہیں، مگر اتنا سب جانتے ہیں کہ انہوں نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے نہ کسی کی دولت پر قبضہ جمایا، نہ کسی عورت کی عزت پر جبراً ہاتھ ڈالا۔ پھر وہ اس جوان کی شریک حیات پر جبر کیوں کر رہے ہیں؟ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔